Hey guys, I welcome you all to Bhatra Ace Academy. So the main question is, there were many students who have already cleared their prelims last year, but after mains they couldn't clear the mains this time, right? So that's why this is a very huge, doubt within the mind of many of the students that अब करे तो करे क्या, what to do now, how to proceed with the upcoming exam, right? So see, actually we are having in continuous touch with many of the students. So the main problem is, see, undoubtedly at this very point of time you have two routes. Either you leave it, either you leave all the dreams that you have seen, either you leave the way for which you have been determined of changing the system, changing the India overall, changing your state, or the second option, the second route that you have to take, and which everyone will suggest you, right, to bounce back. मुझे पता है that how does it actually feels, to getting rejected at this very stage of time. जब आपने इतना मेहनत करके प्रीलिम्स को क्लियर किया, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, राइट? और मेंस के पास में आके जब फिर से बैक ड्रॉप कर जाएगा, बहुत बुरा लगता है. बट देखिए, एज आई सेड दैट यू हैव टू बाउंस बैक, देयर इज नो अदर वे. सो यस, सवाल होता है बाउंस बैक करे तो कैसे करे. देखिए, more or less अभी आपके लिए hardly 5 to 6 months are there with you in totality, right? So how to manage your time schedule, है ना? और see, एक बात, ये जो वीडियो है, it is not only for those students who have who are not able to make it clear the mains this time, but also for those students who are 100% preparing and making themselves ready for upcoming prelims and mains, right? Because see, the thing is that when we have interacted with those students, then they said that they were having few mistakes, and that is what I'm going to discuss it with you, that how to cover those mistakes. कैसे उन मिस्टेक्स को कवर करें जिससे आने वाले समय में आपको वो प्रॉब्लम्स फिर से ना दोहराना पड़े, राइट? सो लेट्स सी दैट आपको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा. नाउ अगेन, उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है दैट अभी मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं एंड फिर से मैं इसको स्टार्ट देना चाहता हूं, और इसके लिए रूटीन कैसे मैं बनाऊं, क्या परफेक्ट रूटीन सेट होना चाहिए, तो उनके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल भद्रा आईएएस एकेडमी में वी हैव पुट दिस वीडियो, राइट? यू कैन गो देयर एंड वॉच इट, and so I'm not going to explain those things again, but what here we are going to mainly focus is, and this knowledge that I'm going to give is not only for the old students but also for the newbies. Means the thing is that old student means those who are not able to clear this times coming, right? And newbies matlab, yes, who are fully prepared to make sure to clear the upcoming prelims, upcoming mains and upcoming interviews. So see, क्योंकि मुझे पता है दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मैक्सिमम जो क्या ऑफ कोर्स जिन्होंने मेंस क्लियर नहीं किया है, उनके लिए, राइट, देयर इज अ वेरी कॉमन सेंस सजेशन दैट आई वुड बी गिविंग यू, दैट you guys know that this exam consists of 3 stages: prelims, mains and interview. prelims में MCQs पूछे जाते हैं, और it should be you should be very ready for the prelims again, right? Because see, अगर आपने लास्ट टाइम prelims क्लियर किया था, लास्ट टाइम भी prelims क्लियर किया है, this does not gives you the license that अगले बार भी APSC आपको prelims में सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना? तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कंटिन्यूसली प्रूव करते रहना पड़ेगा APSC के सामने दैट नहीं, आई एम वेरी रेडी फॉर prelims. और प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा होगा, स्टैटिक में कैसे क्वेश्चंस को फोकस किया जाता है आपके करंट अफेयर वाले पार्ट से, एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स फॉर दैट तो हम लोग भद्रा आईएएस एकेडमी में भी हम लोग आने वाले सेशंस में क्रैश कोर्स ले आएंगे. देन टेस्ट सीरीज, जो कि आप पिछले बार का आप देखा ही था, टेस्ट सीरीज से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए थे, राइट? सो वो सब तो हम लोग चलाते रहेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको अपने से भी प्रीलिम्स के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा. आप जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को खुद का मिस्टेक्स को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? आपको देखना पड़ेगा दैट आपका स्ट्रेंथ कौन सा पार्ट है. फॉर एग्जांपल
Say for example polity, Indian polity is your strength, right? And your weakness, for example Indian history is your weakness, right? तो आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ को मेक श्योर करना पड़ेगा, उसको इंटैक्ट बीच बीच में रिवीजन करो। बट जो बहुत ज्यादा वीक सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, तो उस पे आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यू नेवर नो दैट किस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हैं, राइट? तो और ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के साथ नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन चार ऑप्शंस, है ना? और चार ऑप्शंस में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा ही, आपका गारंटी है, राइट? तो प्रीलिम्स में कभी ऑप्शंस में दो ऑप्शंस तो सही नहीं होते ना, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, राइट? तो प्रीलिम्स को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो एक बार अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं ना, आपको पता ही, आप लोगों ने बहुत जनों ने ऑलरेडी मेंस दिया हुआ है, तो मेंस में क्या है ना, दैट कुछ भी अगर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसा क्वेश्चन है दैट क्लाइमेट चेंज क्या है एंड इंडिया क्या क्या कर रही है, कुछ ना कुछ आप भी लिख कर आओगे, आप भी लिख कर आओगे, और आप भी लोग कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है, किसी को ज्यादा नंबर मिल जाता है, किसी को कम नंबर, और प्रोबेबली अगर आपका इस बार मेंस क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपको आपके अलग कॉम्पिटिटर्स से थोड़े कम नंबर मिल गए होंगे, है ना? उसके लिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को फिर से बाउंस बैक करना है। और मेंस में आपको क्या फोकस करना है, अगेन ये लेकिन बहुत एक सुपर मंत्र है जो कि मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेंस में अगर इसको क्लियर करना है, ध्यान रखिएगा, आपको मेंस में क्या है, GS1 एसे, राइट, GS2, GS3, 4, 5, ठीक है? तो जब GS1, 2, GS3, GS4 और GS5 है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में देखना है कौन सा एस्पेक्ट आपका सबसे ज्यादा पास्ट वाले मेंस में स्ट्रांग था, उसको भी रिवीजन कीजिएगा। मतलब आपको स्ट्रेंथ तो देखना ही है, कौन सा वाला पार्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ था, बट साथ ही साथ आपको अपने वीकनेस को एनालाइज करना ही पड़ेगा यहां पर। और वीकनेस बोले तो हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट मेंस के वो वाले एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर मेंस के आपका GS1 में हिस्ट्री कमजोर है, राइट, फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा दैट GS1 के हिस्ट्री के एक तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस किस किस के आप देख सकते हो, आप यूपीएससी के देख सकते हो, आप एपीएससी के देख सकते हो, आप यूपी पीसीएस के देख सकते हो, यूनियन उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, राइट? तो अगेन आप अगर इन सब के भी क्वेश्चंस, चलो यूपीएससी एपीएससी का तो देख लो एटलीस्ट, क्योंकि आपका अगर एम है यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी, सो यस यू हैव टू फॉलो दैट। एटलीस्ट आप अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, आपको ट्रेंड तो पता चल जाएगा दैट फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया से कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, फॉर एग्जांपल मिडाइवल से कौन कौन से, मॉडर्न इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, राइट? मुझे याद आ रहा है दैट एक समय क्वेश्चन पूछा गया था दैट अगर गांधी जी नहीं होते, है ना, तो कैसे इंडिया को, मतलब इंडिया का क्या होता है इंडिपेंडेंस मिलने को, तो ऐसा थोड़ा ना गांधी जी नहीं होता तो इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। हाँ, कैसे हम नहीं, क्या होता, शायद थोड़े वायलेंट तरीके से इंडिपेंडेंस मिलता, राइट, शायद थोड़ा लेट हो जाता, है ना, शायद इंडिया थोड़ा और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट होता, है ना, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ तो आंसर, बट अगेन ये आंसर्स आपको मिलेगा कैसे, तभी जब आपका ओवरऑल नॉलेज हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है? तो अगेन हम लोग को भी यही समझना पड़ेगा दैट अगर इन सब सारे एरिना से क्वेश्चन आ सकते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 से, अगर दिस दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, देन यू हैव टू सी दैट आपका स्ट्रेंथ किस किस एरिया में ज्यादा है। स्ट्रेंथ में तो खैर आपको उतना कंटिन्यूअसली रिवीजन करना ही पड़ेगा, और आप लोग को पता चल गया होगा अगर आपके क्वेश्चंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपका आंसर राइटिंग, ठीक है? और आंसर राइटिंग के लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
because we at Bhadra IAS Academy is always there with you। हम लोगों ने अपने YouTube चैनल में ही देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे आंसर राइटिंग के क्लासेस लिए हुए हैं। आप सिंपली YouTube में सर्च कीजिए भद्रा IAS Academy आंसर राइटिंग, है ना, देखिएगा ऐसे बहुत सारे पास में क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे लिखते हैं, जहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, उन गलतियों को हम लोग सुधारते हैं और वी मेक श्योर दैट वो गलती जिससे बार बार बच्चे रिपीट ना करें, राइट। तो आंसर राइटिंग को आपको कंटिन्यूअसली फोकस करते ही रहना पड़ेगा। और आप जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप लोग को पता चल गया होगा अगर नंबर कम आए हैं तो किस लिए, क्योंकि देखो जो बंदा प्रीलिम्स क्लियर करता है, ऑब्वियस सा बात है हर एक बंदा का जो दिमाग का लेवल है ना वो 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट मेन डिफरेंस कहां आ जाता है, आंसर राइटिंग में, राइट, है ना। आपको कैसा भी हेल्प चाहिए, फील फ्री, डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट करना, आंसर कमेंट में जो भी लिखोगे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ट्रस्ट मी। जो भी जैसा भी हेल्प चाहिए, इनफैक्ट इफ यू वांट दैट वी चेक योर आंसर्स, आप एक काम करो ना, भद्रा IAS एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पे जस्ट सेंड योर आंसर, आई प्रॉमिस यू आई विल पर्सनली चेक दैट आंसर फॉर यू। हाँ, एक दो दिन लेट होगा, मतलब द थिंग इज दैट I'll be checking that for you, right? It's not that I'll not be checking, and at the same time I'll be giving the reviews as to what are the areas in which you can do improvement, right? We have started that like the things are absolutely going on, right? So the thing is that मैं वही बोल रहा हूं that आपको इन सारे सब्जेक्ट को एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? हिम्मत मत हारो, राइट, क्योंकि देखो आपको अल्टीमेटली प्रीलिम्स के लिए भी तो इन्वायरमेंट पढ़ना है ना, इसके लिए भी तो इन्वायरमेंट पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है, मेंस के लिए भी तो पढ़ना है ना। बट हाँ, जो ओल्ड प्लेयर्स हैं और जो न्यू प्लेयर्स हैं, अभी से देख लीजिए, अगर दिन में अगर आप 100% से फॉर एग्जांपल स्टडी में दे रहे हो, तो 100% में आप मेक श्योर कीजिए 50% मेंस, मतलब एटलीस्ट आंसर राइटिंग को भी थोड़ा मोड़ा फोकस दीजिए, और बाकी वाला जो टाइम है वो टाइम में आप दूसरा मतलब प्रीलिम्स मेंस वाला भी कीजिए और प्रीलिम्स वाला, मतलब टाइम देखो ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है अगेन दैट समय के साथ साथ दैट किस वाले एरिया को ज्यादा फोकस दोगे, किस वाले एरिया को कम। अगर आपको इनिशियल स्टेज में लग रहा है दैट नहीं मुझे प्रीलिम्स को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, प्रीलिम्स को फोकस दीजिए। अगर स्पेसिफिकली ओल्ड प्लेयर्स, वो लोग थोड़ा मेंस को ज्यादा फोकस दीजिए, 60% टाइम आप मेंस के प्रिपरेशन में दीजिए, राइट। प्रीलिम्स भी दीजिए, प्रीलिम्स में देखो आप अगर लास्ट बार दिए हो तो आपको पता चल गया होगा दैट कैसा उस माइंड स्टेज ऑफ माइंड में क्या क्या क्लिक करना चाहिए, कैसे आपकी प्रिपेयर्डनेस लेवल रहनी चाहिए जिससे क्या ये क्लियर होना इजी हो जाएगा, राइट। सो एवरीथिंग यू हैव द नॉलेज अबाउट इट, बट फॉर द टाइमिंग दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट मेंस में हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर एनालाइज करके उसके आंसर्स को प्रोसीड करना इज द मोस्ट टफेस्ट एस्पेक्ट, राइट। एंड इंटरव्यू की तो खैर बात नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर द हेल्प इन इंटरव्यू, राइट। भद्रा IAS एकेडमी ऑलवेज कम अप विद दिस इनिशिएटिव ऑफ इंटरव्यू, सो इंटरव्यू में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी के लिए आपको मेन क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस को ही ना, मेंस को तो क्लियर कर लो। देखो इंटरव्यू क्या है, वो पर्सनालिटी टेस्ट है, राइट, उसमें मैं अभी ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं। अगर आपको चाहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, आई विल श्योरली बी मेकिंग क्लासेस फॉर दैट एज वेल। बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द मेंस, एज आई सेड दैट थोड़ा ज्यादा आप लोग फोकस दीजिएगा अपने आंसर राइटिंग में। एंड as I said, Bhadra IAS Academy is always there for you. So all the best, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, yes, directly contact us. We at Bhadra IAS Academy will be there for your help. Thank you.